ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ PPMS ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ अतीव संतोष ತಂದಿದೆ. साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे छोटे एक इदारे को हमारे दावत को कबूल करके आए. मैं आपका बहुत कृतज्ञता पूर्वक आपको मैं अभिनय करता हूँ. सब धन्यवाद करता हूँ. ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಲ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ VP ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಜಾರಿಸುವಂತಹ ನ್ಯಾಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಇವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೆದರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು PTS ಬಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ಇವತ್ತು ಗಂಡುಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿರೋದು. ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ರೆ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ತಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು ಆದರೂ ಸಹ ಅದರ ಒತ್ತಡ ನಡುವೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಸರುದ್ದೀನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ.
ಮತ್ತೆ ಚೋಟು ಬೈ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾದರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಹಜಾನ್ ಅವರು, ಸಾಗರ್ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ, ಇರ್ಷಾದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ಫೈಜುದ್ದೀನ್, ನವಾಜ್, ರಫೀಕ್, ನಮ್ಮ ಫೈಜಲ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ವಜೀತಾ ಕಮಿಟಿಯ ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಅವರು, ಅಮೀರ್, ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್, ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್, ನಮ್ಮ ಮುಷೀರ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಂಥ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನುಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜಹೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ರಾಯಿಲ್, ಫಾಸಿಲ್, ಹಸ್ನೈನ್, ಕಾಶಿಫ್, ಯೂಸುಫ್, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್, ಸಾದಿಕ್, ಉಮರ್, ಫೈಸಲ್, ಶಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದಂಥ ಸಲೀಂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಸೀದಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ताहा की कमेटी और ताहा बैतुल माल के तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत बख्शी और तिरंगे को लहराने का मौका इनायत फरमाया, जिसके लिए मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ. जनाब राहुल गुप्ता जी और जितने भी यहाँ बयास पे बैठे हैं, मस्जिद के मुंतजिमा और अराकीन और मस्जिद के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज हम 70 पर 8वीं इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं. यहाँ जो है ना, ये हमारे देश की ईद है. आज इंडिपेंडेंस डे जो है हिंदुस्तान की ईद का दिन है और यहाँ सारी कौमों को मिलकर ये ईद मनाते हैं हम लोग और घर घर में तिरंगा लहराते हैं हम लोग. तिरंगे की बड़ी इज्जत करते हैं और हमारे देश की शान जो है तिरंगा, अभी मुझे वहाँ लहराने का मौका मिला. आप लोगों ने मुझे ये मौका अता किया और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका. मैं यहाँ 2-3 बातों पर बात करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों के योगदान को भुला देते हैं. हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों के योगदान को भुलाते जा रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारा कोई योगदान नहीं है. मैं 2-4 चीजें इसमें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि हमारे मुसलमान भाइयों का दूसरे हिंदू भाइयों और तमाम फिरकों के लोगों के साथ हमारा क्या योगदान रहा है. थोड़ा बहुत मैं इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले मैं आप सबको 70 पर 8 78वीं इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद पेश करता हूं. और अभी अभी हम लोगों ने तिरंगा लहराया. आपको पता है यह तिरंगा डिजाइन किसने किया था? सुरैया तैयब जी ने यह तिरंगा 1947 में इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के कहने पे, उस वक्त पे सुरैया जी ICS के ऑफिसर थे, PMO में काम करते थे और उनको जो है नेहरू जी ने कहा कि तिरंगा जो हिंदुस्तान का जो झंडा है उसका डिजाइन करो. तो कई लोगों को उन्होंने कहा था, कई लोगों के बाद फिर सुरैया तैयब जी ने भी इसको डिजाइन किया. डिजाइन करके जब कमेटी के सामने ले आए तो सारी कमेटी वालियों ने, सब लोगों ने उसको अप्रूव किया. ये एक मुसलमान खातून ने डिजाइन किया है, ये हमारे लिए फख्र की बात है. और यही खातून, इनके हस्बैंड जो है ना बदरुद्दीन तैयब जी थे, वो हिंदुस्तान के पहले सॉलिसिटर जनरल थे और हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के पहले चीफ जस्टिस भी थे.
ये इनका योगदान है। और उस जमाने से लेकर 1947 से लेकर आज तक भी और कयामत तक भी जो है ना, ये तिरंगा ऐसे ही रहेगा। ये हमारे कौम का एक हमारे कौम की एक औरत का, एक खातून की देन है। उसके बाद जो है ना, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले शहीद होने वाला एक मुसलमान था। शहीद मेरे से बहुत ज्यादा हमारे कर्नल साहब जानते हैं शहीद का क्या मर्तबा होता है और शहीद क्या होता है और क्या कहलाता है। ये मेरे से ज्यादा हमारे कर्नल साहब जानते हैं, क्योंकि हमने शहीदों के नाम सुने हैं, शहीदों को देखा नहीं है। यहां जो है ना, सबसे पहले शहीद होने वाला 1857 में मौलाना अलाउद्दीन था, एक मुसलमान था। 1857 में पहला शहीद हिंदुस्तान का अलाउद्दीन था, मुसलमान था। उसके बाद आपको ये पता है जय हिंद का, अभी हमारे कर्नल साहब भी कह रहे थे, एक नाम लिए उन्होंने, उनका नाम था अब्दुल हसन सफरानी है, ये हैदराबाद के थे। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, आपको पता है। जय हिंद का नारा देने वाला भी एक मुसलमान था और हमारे साउथ से था और जो है ना हैदराबाद का था। और उसने सुभाष चंद्र बोस को यह नारा दिया था। जब विलायत में पढ़ रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस एक दिन उस कॉलेज में विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे जो ये था, जब भी किसी से मिलते थे हेलो कहा करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने जब स्टूडेंट से मिला, उस टाइम पे जब उन्होंने हेलो करके हाथ बढ़ाया, तो ये जो है ना अब्दुल हसन ने कहा कि नहीं सर, ये गलत है, आपको जय हिंद कहना चाहिए। ये जय हिंद का नारा भी मुसलमान ने दिया था। उसके बाद आपको ये बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, तारीख गवाह है, दिल्ली की राजधानी में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे जो है ना एक पत्थर है, उस पे 95,300 नाम कुनंदा हैं। 95,000, 1,00,000 को 5,000 कम, 95,300 नाम कुनंदा है। उसमें पता है आपको सबसे ज्यादा किसके नाम है और कितने नाम है? मुसलमान 61,390 पर 5 मुसलमानों के नाम हैं। 95,000 में शहीद होने वाले 61,390 पर 5 मुसलमान हैं। फिर भी हमसे कहते हैं कि भाई हमारा कोई योगदान नहीं है हिंदुस्तान में। बताइए और से ज्यादा और क्या योगदान चाहिए? हमारे शहदा जो है ना 61,000 है 95,000 में, और दूसरे जो है ना मुसलमान 61,395 हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस 14,480 है, और सिख भाई जो है ना 8,050 है, और दलित भाई 10,770 पर 7 हैं, और दूसरे जो है ना 590 पर 8 हैं। आप इसको टोटल कर लीजिएगा, 95,300 होंगे। सबसे ज्यादा योगदान हमारी कौम का है, हम पीछे नहीं है योगदान देने में। रुड़की का वो कुआं आज भी बाकी है जहां हमारे मुसलमान भाई बहन जो है ना अंग्रेजों की इस पे जो है ना अंग्रेजों की जबरदस्ती उनको जो है ना वहां धकेल दिया गया, मार दिया गया। आज भी वो तनख्वाह, आज भी वो कुआं रुड़की में बाकी है। हजारों में शहीद हो गए वहां, हजारों लोग उसमें कुएं में छलांग लगा दिए, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के हाथ में उनके जुल्म को सह ना सके और उसमें छलांग मार के शहीद हो गए। ये हमारा इतिहास है, और फिर भी हमसे कहते हैं कि हमारा कोई योगदान नहीं है। आपको एक और बात बताऊं, पते की बात जो है ना, मीर उस्मान अली नवाब ऑफ हैदराबाद के नवाब, 1962 की जब जंग हो रही थी तो हमारे पास खजाना खाली हो गया था। उस जमाने में खजाना बिल्कुल खाली हो गया था, पैसा नहीं था, और जंग लड़ी थी हमें, जंग जीती थी। जंग किसके दरमियान थी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान थी। जब शास्त्री जी को नवाब उस्मान अली साहब का फोन आता है, शास्त्री जी जब उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनको फोन करते हैं हमारे एक मुसलमान साहब,
मीर उस्मान अली हैदराबाद के नवाब फोन करके कहते हैं आपका खजीना खाली हो गया होगा, लेकिन मेरा खजीना खाली नहीं हुआ है। आप हुक्म करिएगा, जो चाहिए देश की आजादी के लिए, देश की लड़ाई के लिए, मैं मेरी तरफ से कुर्बानी देना चाहता हूं। तो जब शास्त्री जी ने कहा नहीं नवाब साहब, आपको आने की यहां जहमत नहीं करिए, आप वहीं रहिएगा, मैं खुद आऊंगा। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं हैदराबाद जाके नवाब मीर उस्मान अली साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे दरखास्त करते हैं कि भाई हमारा खजाना खाली हो गया है, हमारी मदद कीजिएगा। तो ये कहते हैं कि 5 टन सोना, अंदाजा लगाइए कि 5 टन सोना उन्होंने मदद के तौर पे हिंदुस्तान की सरकार को दिया। उस जमाने में 5 टन सोना देना कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने 5 टन सोना लड़ाई के लिए, और किसके साथ? एक मुसलमान देश के साथ लड़ाई हो रही है, एक मुसलमान जो है ना उसके खिलाफ लड़ने के लिए मदद कर रहा है, और उससे ज्यादा योगदान हमारा क्या होना चाहिए बताइए? उससे बड़ा और जो योगदान और क्या होना चाहिए? और मैं यहां बेंगलोर की बात करता हूं। हाजी उस्मान शेख जो गुजरात से बेंगलोर आए थे 1879 की बात मैं कर रहा हूं। हाजी उस्मान साहब आए बेंगलोर में। आपको याद होगा एक कैश फार्मेसी है रेजिडेंसी रोड पे। कैश फार्मेसी जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये इन्हीं के हाजी उस्मान शेख साहब की ये थी, वो प्रॉपर्टी थी वो। और जो है ना ओपेरा सिनेमा हॉल जो एमजी रोड में है, ये भी उन्हीं का था। ये 60,000 करोड़ के मालिक थे उस जमाने में। 60,000 करोड़ के मालिक ब्रिटिशर्स के दौर में। ये सबसे मुसलमानों में सबसे ज्यादा मालदार आदमी यही थे। ये बेंगलोर से थे। जब 1919 में खिलाफत की ये जंग शुरू हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो गांधी जी के पास पैसा नहीं था, नेहरू जी के पास पैसा नहीं था। उन्होंने उस्मान शेख साहब को खबर भिजवाई कि हमारे पास पैसा नहीं है लड़ाई के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लैंक चेक साइन करके उनको दे दिया कि लड़ाई को आगे बढ़ाइएगा, हम आपके साथ हैं, हम सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम आजादी लेकर रहेंगे। ये उनका वादा था और उन्होंने यही डिमांड किया। और एक ब्लैंक चेक के साथ साथ 100 किलो सोना उनको दिया। गांधी जी को और नेहरू जी को 100 किलो सोना के साथ साथ एक ब्लैंक चेक दिया। और उन्होंने ये वादा किया कि नेहरू जी से कि मैं आज के बाद, क्योंकि ओपेरा सिनेमा हॉल में जो है ना सिर्फ अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी उस जमाने में, अंग्रेजी फिल्मों की नुमाइश होती थी। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं इस ओपेरा सिनेमा हॉल में अंग्रेजी फिल्में कभी नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों को बंद कर दिया। उसके बाद जो है ना जो कैश फार्मेसी थी उस जमाने में एक बहुत बड़ा माल था, हर चीज मिलती थी, विदेशी कपड़े वगैरह सब वहीं मिलते थे। उन्होंने जैसे ये हुआ खिलाफत की लड़ाई शुरू हुई तो उस टाइम पे उन्होंने सारा जो विदेशी माल था उसको जला दिया उन्होंने। उसके बाद अंग्रेज इनके खिलाफ हो गए। 60,000 करोड़ का इंसान फुटपाथ पे आ गया, तब भी उसने उफ नहीं की। फिर जब देश को पैसे की जरूरत पड़ी, आजादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो अपने बड़े बेटे को लेके जाके गिरवी रख के उन्होंने पैसा दिया। और क्या योगदान देना है हम लोगों को? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जो ये सब हमारा योगदान है। हमारे हिंदू भाई जो है ना हमारे साथ हैं, और कुछ फिरका परस्त लोग हैं। 95% हिंदू भाई सेक्युलर है इस देश का, 95%। 5% जो है ना बिगड़े हुए लोग हैं, इनसे हमें कोई ये करना नहीं है। हम लोगों को, हम सबको मिलकर
सारी कम्युनिटीज को मिलकर, सारे कौमों को मिलकर हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। ये हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। और मैं आप लोगों को एक आखिरी में एक शेर कह के मैं इस पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा। मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में शासक हम नहीं करते। जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी को भी नापाक हम नहीं करते। शुक्रिया। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट से शुक्रिया, थैंक यू टू जनाब द प्रेसिडेंट ऑफ द मस्जिद ज़ाहा मिस्टर सनाउल्लाह खान फॉर ऑनरिंग मी विद दिस अपॉर्चुनिटी टू hoist our national flag on this 78th Independence Day celebration at this holy place. So honorable elders, respected brothers and sisters and dear children, because I can see the children here. On this auspicious day, we gather here in the house of Allah to celebrate 78th Independence Day of our beloved country, India. This day is a reminder of the sacrifices, struggles and dedication of countless men and women who fought tirelessly to secure the freedom we cherish today. As we stand here in the second place, let us remember that our religion teaches us values that aligns perfectly with the essence of independence. The values of justice, equality and compassion were the cornerstones of our freedom struggle, and they continue to guide us as citizens of the India. The struggle for independence was not just a political movement, it was a moral and spiritual journey as well. Our forefathers from the different faiths, religions and background united with a common purpose to free our nation from the Britishers' rule. Now leaders like Abul Kalam Azad ji, Abid Hassan Safrani ji, who was the aide to Subhash Chandra Bose, Ghulam Rasool Khan, who was the Nawab of Kurnool during the fight against the East India Company, and Haji Sharifullah Sahab, who has enforced a movement called Farazi movement, and then Azimullah Khan Sahab, who was there as a freedom fighter in 1857. Then Sardar Patel Sahab and Mahatma Gandhi Sahab, and many others who have taught us the path to freedom in this through patience. ನೋಡಿ, 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಸಬ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಇದ್ದರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಇದು ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೇಶ ಇದು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದು ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮಾತು ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ 95% ಹಿಂದೂಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ವಿರೋಧ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿರೋಧನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂದರೆ 5% ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜನ ಅಂಥವರು. ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಸಲ್ಲಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 5% ಏನು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು 95% ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆದರೋದು ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಗದಾನ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಯೋಗದಾನ ಇದೆ, ಅದು ಯೋಗದಾನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.